And the next topic is so this is our new topic, that is organizing handball festivals. So if we want to promote the game, if we want to popularize the game, then we must focus on this, how to organize the handball festival. So this is one of the best method to involve each and every stakeholders from the school as well as the parents of the students, and involving each and every student or players who's practicing daily in that particular festival. So how we organize? First of all, we have to focus on the festival must be organized in the manner like we celebrating our own festivals. And we just design according to that, so that parents also involved in that handball festival. Each and every player is involved in the particular festival. And we just decorate our handball ground in that manner only. So now the few points we must consider. The most important philosophy of IHF, and now each and every have to develop this philosophy, that it is must be fun and passion and health. The most important, winning the trophy, winning the medal is the secondary aspect. That may be later on, afterwards. But before that, fun, enjoyment, passion, and health is the philosophy of IHF. And now this is each and everyone having this philosophy. Don't teach your student to harm the other opponent player. Don't teach this. Because when they learn this thing, they can apply first on the play field, and afterwards, this may be the chance, the same practice they will apply in the real situation, in the real environment also. They become hostile. So just don't teach this thing to harm the health of the other players. Many a time what happened, I just saw when one of the team player is playing very wonderful game or good game, the opponent team is just charged that particular player by hitting on the face, by breaking the teeth, so many players, by breaking the nose, by breaking the jaw. Lot of time. This is the last weapon used by the many teams. Many teams are using this thing. If they are not able to counter that particular team, then this direction is basically given by the, I'm saying very true. Coach direct the team players, just harm that player. Okay, no doubt you win that particular match, but really you win the match. That decide when you just sleep in the night, whether you win the match or whether you really lose the match. So winners or champions never follow these tactics to harm the players. If you have a capability, you can defend the player. Who stops you? Handball allows you. Handball ने मना कब किया भाई? आपने तो handball को देता है. 1 versus 1 is allowed. 1 versus 1 confrontation is allowed. अभी देखिए आप ओलंपिक मैच चल रहा है. 1 versus 1 confrontation is allowed. Hard confrontation is allowed. But nobody is harming the player. Nobody breaking the teeth. We are playing a match in one of the places. I'm not taking the name. And we are winning the match. One-sided winning with the match. And one of the great players, so-called the great player of that team, he just breaks the teeth of one of my player.
Now that player still don't have the teeth in front of the front teeth, no teeth here. तो उसके क्या होता है? What happened? You are harming the player. So just try to avoid this thing. If you are good, then you can beat by just defense. Defense is the power of you. तो ये अर्ली एज में, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग. अगर ये वाला मैटर नहीं हटा, अगर ये वाला फैक्टर नहीं हटा, तो इट नेवर बिकम अ पॉपुलर गेम. बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं. दैट्स व्हाई आई एम टचिंग दिस पॉइंट. ये आपको समझना पड़ेगा. अगर ये इस तरीके से हार्म होता रहेगा, प्लेयर्स की लाइफ के साथ थ्रेटनिंग होता रहेगा, दे डेफिनेटली लीव द गेम. तो इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा. हैंडबॉल ने ऑलरेडी पावर दिया हुआ है टू डिफेंड. डिफेंड करिए, किसने मना किया? बट नॉट ऑन द शेक ऑफ द हेल्थ. तो जस्ट दिस थिंग. देन इन द ऑर्गेनाइजिंग द फेस्टिवल, it is a basically a recreational and development elite player. We must involve each and every player. ऐसा नहीं होना चाहिए कि we are leaving some players. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. Great care should be ensure that community, each and every player should be involved in the community, in the school, individually, small group. किसी भी तरीके से मैच कराइए, स्मॉल ग्रुप मैचेस कराइए. आप एक कोर्ट को 2 कोर्ट्स में, मिनी कोर्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हाफ कोर्ट्स डिवाइड कर सकते हैं, 3 वर्सेस 3 गेम करा सकते हैं. बट इन्वॉल्व ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फेस्टिवल. जो रिक्रिएशन के लिए खेल रहा है उनको भी इन्वॉल्व कीजिए, जो अपना डेवलपमेंट करने के लिए कर रहा है उनको भी इन्वॉल्व कीजिए, और जो एलीट प्लेयर्स है उनको तो बिल्कुल इन्वॉल्व कीजिए. एंड देन अ मिक्स टीम करना चाहिए. एंड ये मैंने जैसे बताया था कि हम लोग किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट करते हैं, बाय इन्वॉल्वमेंट. आप उनको इन्वॉल्व करेंगे, इन्वॉल्विंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट, दे आर डेवलपिंग देमसेल्फ. उनका भी डेवलपमेंट होता है, दे आर लर्निंग न्यू थिंग्स. If you want to teach a swimming to a person, then you must give a swimming pool or exposure in the water, isn't it? आपको पानी तो देना पड़ेगा ना, तभी तो बच्चा सीखेगा. अब आप बोलेंगे बाहर से देख के स्विमिंग सीख लो, वो कभी नहीं सीख पाएगा. That's why just try to give the opportunity to your students so that they can organize a festival. Offering concurrent trainings, interaction, ritual for teachers and administration, discuss curriculums. अब यहां पर बात आ रही है कि क्या, देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कुरिकुलम, एडिंग द कुरिकुलम इन द स्कूल. क्या अभी हमारे यहाँ कुरिकुलम ऐड हुआ है? नहीं हुआ है. अभी ये पीई में इन्वॉल्व हो गया है, फिजिकल एजुकेशन में सीबीएसई में इन्वॉल्व हुआ है, एनवीएस में है, केवीएस में है, पर अभी ये फिजिकल एजुकेशन के क्या एग्जैक्टली अभी हैंडबॉल एज ए कुरिकुलम स्टार्ट हुआ है? नहीं हुआ है. कैन वी ऐड? क्या कोई स्कूल स्टार्ट कर सकता है फॉर एग्जांपल एज ए कुरिकुलम, बेसिक लेवल कुरिकुलम, इंटरमीडिएट लेवल कुरिकुलम, एडवांस लेवल कुरिकुलम? अगर आप इसको इन्वॉल्व करेंगे, आई विल डेफिनेटली हेल्प इन दिस. आई हैव ऑल द कुरिकुलम. हम वो सारे कुरिकुलम आपको शेयर कर देंगे दैट यू कैन इंट्रोड्यूस इन योर स्कूल. So that what happened when you involve all the administrators and stakeholders of the particular school or the community, then you can also add the curriculum in your schools also. And this is the most important factors. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आ रहा है. देखिए आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा बहुत सारी चीजों का जो आपके मन में था. We are till date we are not involving each and every stakeholders. अभी तक क्या इन्वॉल्व कर रहे थे? नाउ द आंसर यू हैव, यू कैन डिसाइड क्या सही में कर रहे थे. नाउ दिस इज द टाइम टू इन्वॉल्व ईच एंड एवरी वन फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ सक्सेसफुल फेस्टिवल. कॉल देम, इनवाइट देम, मेक द चीफ गेस्ट, एंड देन ट्राई टू इंक्लूड द इन योर करिकुलम प्लान as a main activity.
So then afterwards we move how we configure the thing. अच्छा, अब क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा, कॉन्फ़िगर कैसे करें, स्टेट कैसे, कॉन्फ़िगर मींस क्या होता है, स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो इसका जो होता है कि वी कैन हैव इफ द फैसिलिटी ऑफ इंडोर देन ओके वेरी गुड, आउटडोर वेरी गुड, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, we having grass surface very good, we having a clay surface very good, we have a beach handball facility, then we can organize beach tournaments, beach festivals. Why can't we use the apply the beach handball rules in our outdoor ground, isn't it? क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आप लोग में से बीच हैंडबॉल किसने किसने खेला है, बीच हैंडबॉल? यस सर। यस सर। नाम बताएंगे, मेरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा, आप नाम बताइए। सर शौर्य कौशिक दिल्ली। हाँ शौर्य जी, तो क्या डिफरेंस है बीच हैंडबॉल और नॉर्मल हैंडबॉल में, इंडोर हैंडबॉल में? सर काफी डिफरेंस है सर। किसमें ज्यादा मजा आता है? सर बीच का अपना अलग मजा है, क्योंकि उसकी जो शूटिंग है, जो शूटिंग एक्शन है उसमें थोड़ा सा मतलब वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इंडोर हैंडबॉल। और तो क्या हम इसको एज ए फेस्टिवल ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते? यस सर ऑफ कोर्स। तो क्या हमें उसके लिए सैंड चाहिए, क्या वी रिक्वायर्ड अ सैंड? नो सर, अगर हम चाहे तो, अगर सैंड अवेलेबल नहीं है फिर भी हम उसको थोड़ा सा मतलब कि सैंड मिट्टी में थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा अच्छी जगह मिल जाए तो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसको। नहीं, व्हाई नॉट, जैसे हम बोल रहे हैं, हम बस मार्किंग तो चेंज करना है, जस्ट मार्किंग चेंज करना है, जरूरत क्या है वो हमें वो जो सैंड की जरूरत पड़ती है, क्यों प्रवीण जी? प्रवीण कहाँ है? प्रवीण, प्रवीण, अरे प्रवीण कहाँ चले गए? प्रवीण आर यू देयर? अच्छा मिस्टर सरफराज, मिस्टर सरफराज, मिस्टर सरफराज नहीं है, ये भी नहीं है। मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। तो मिस्टर सरफराज, मिस्टर प्रवीण कोई नहीं है इस समय। ओके प्रद्युमन, मिस्टर प्रद्युमन, हाँ मिस्टर प्रद्युमन, मिस्टर प्रद्युमन सिंह, आर यू देयर? डोंट वांट टू पार्टिसिपेट? प्रद्युमन मुझे स्क्रीन में दिख रहे हैं इस समय, नहीं है। मिस्टर प्रवीण सिंह, हाँ दिख गया। प्रवीण सिंह, प्रवीण सिंह जी कहाँ हैं? ही इज नॉट लिसनिंग, क्लास में से गए। तो कौन जिसने दोनों गेम फॉर्मेट खेला है? क्योंकि मैंने प्रवीण सिंह को खेलते हुए देखा है दोनों फॉर्मेट में। सर खेला है मैंने भी सर। हाँ कौन कौन? सुमित यादव सर। अच्छा दोनों, हाँ सुमित यादव। हाँ तो बताओ, क्या इसे रियल एनवायरनमेंट में हम यूज कर सकते हैं बीच हैंडबॉल को अपने आउटडोर? यस सर कर सकते हैं। मार्किंग तो ग्राउंड थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बाकी वैसा ही है, बस ये है कि उसमें थोड़ा सा इजी करके खेलना पड़ेगा उसको। रूल्स हम सारे वही फॉलो करेंगे, और जो सारे उसमें 2 पॉइंटर्स है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। बस उसमें गिरने के लिए थोड़ा सा स्किल अपनी और डेवलप करनी पड़ेगी, बस बाकी तो सारा खेल सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, good, very good. Okay, now we move towards like different genders we can improve, like male, female, mix, like that we can improve. Background and skill level we can ये भी हम यूज कर सकते हैं। And most important thing, emphasizing on playing together and working together, no matter what is the outcome. ये जरूरी नहीं होता, outcome is not the matter. And then a skill competition और mini game, तो ये हम क्या स्किल बेस पे भी ला सकते हैं, मिनी गेम बेस पे भी यूज कर सकते हैं। जस्ट एंड दिस इज वंडरफुल वे टू इनकॉर्पोरेट द स्टूडेंट फेवरेट कुरिकुलम इनटू फेस्टिवल। क्या हम ये फेस्टिवल को
अपने उसमें यूज कर सकते हैं हैंडबॉल फेस्टिवल को रियल करिकुलम में? दिस इज द क्वेश्चन, एंड नाउ ईच एंड एवरीबॉडी हैव टू वर्क ऑन दैट। और ये डिफरेंट जो प्लेइंग सरफेस रूल्स होते हैं हम उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट कि वी आर मस्ट फोकसिंग ऑन द 20x40 मीटर्स। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसी पर काम करना है, हमें सब पर काम करना चाहिए एंड वी मस्ट फोकस ऑन दैट। हमारे पास 20 मीटर्स बाय 13 का भी हम मिनी कोर्ट बना सकते हैं। हम एक रियल बीच हैंडबॉल के कोर्ट पे भी ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द वेरिएशंस, लाइक here are some examples of organizing the festivals. So first of all, on the school based, school wide festival, like Mr. Sarfraz told us, he organized a inter school competition. So like that school based competition can be organized. इसमें बेसिकली जो फोकस आ जाएगा वो टीचर पे ज्यादा रहेगा। रिसोर्सेस मिल जाते हैं स्कूल के बहुत सारे, ओपन स्पेस, इक्विपमेंट, ये सारे वी कैन गेट फ्रॉम द स्कूल ओनली। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑर्गेनाइज करने से डिस्ट्रिक्ट वाइड फेस्टिवल्स आर एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर टीचर और डिस्ट्रिक्ट वालों का कॉम्बिनेशन हो जाता है टू प्रमोट द स्पोर्ट। एंड सिटी वाइड फेस्टिवल कैन बी ऑर्गेनाइज। थर्ड, अब इसमें क्या होता है, वी कैन गैदर अ लार्ज पब्लिक, वी कैन ऑर्गेनाइज द टूर्नामेंट इन द पार्क, इन अ कम्युनिटी सेंटर्स, as well as in the malls, shopping malls. Nowadays in the shopping malls you can organize the competition, but you required a proper coordination with the city administrators. आपको city administrators जो होते हैं उससे proper organize करना चाहिए। 5,000 10,000 people you can involve, आप 5,000 to 10,000 people को involve कर सकते हैं larger level पर, but you required a permission from the city administrator for organizing these type of festival. Now in the same part, in the administration, we must focus on these aspects. Festival requires minimal amount of festival administration. ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, ये कम से कम में भी हो सकता है। बेसिकली वी शुड टेक हेल्प ऑफ वॉलेंटियर्स। आप जानते हैं वॉलेंटियर्स की हेल्प के बिना कुछ नहीं होता। दिस ओलंपिक गेम्स इज आल्सो रन ऑन द बेसिस ऑफ द वॉलेंटियर्स ओनली। we were in 2016 we were the organizer of this 2016 South Asian Games handball, हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। We organized that tournament. तो हमारे पास लिमिटेड फैसिलिटीज में जो लिमिटेड वो था, रिसोर्सेज थे, बट वी टेक द आवर स्टूडेंट एज ए वॉलंटियर। तो कैन वी यूज अ स्टूडेंट एज ए वॉलंटियर्स, ट्रेन वॉलंटियर्स, एंड देन वी कैन ट्रेन देम, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी मस्ट ऑर्गेनाइज द फेस्टिवल. And this is especially true in school district-wide festival. And we must always try to coordinate with the parent of the student. ये बहुत important है। हमें students के जो parents हैं उनको involve करना चाहिए अपने इस तरह के festivals में। And then they can also become a resource for you. They can become a part of your tournament, your festival, and this is also considered as a priority. ये priority में होना चाहिए, बहुत important है। ये छोड़ देते हैं, maximum time we leave the parents. Festival stakeholders will include teachers, ये बहुत है, अच्छी बात है। Physical education coordinators, academic and sports administrators, parent teacher organizers. इनको बहुत अच्छे से हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। वी शुड इन्वॉल्व दीज
तभी जाके हमारा ये सक्सेसफुल होता है। एंड फॉर द वाइडर लेवल वी मस्ट ऐड कम्युनिटी लेवल स्टेक होल्डर्स एंड गवर्नमेंटल सपोर्ट, जहां से भी मिल सकता है। जैसे अभी एक एग्जांपल आया था कि वन ऑफ द पर्सन पार्टिसिपेंट मिस्टर वीरेंद्र इज यूजिंग गवर्नमेंट सपोर्ट to organize these type of tournaments. So like that, we should also try to take the government help also. Now, अब questions raise आते हैं कि what are the problems we are facing. अब होता क्या है कि बोलते हैं स्पेस नहीं है, जरूरत नहीं है इतना ज्यादा स्पेस का बारे में सोचने की. We can design a mini court. We can organize on the competition in the half court. अगर आपके पास एक बड़ा प्ले फील्ड है, यू जस्ट मेक 5 और 10 प्ले फील्ड्स, वहां पर ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. तो बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, दे आर ऑर्गेनाइजिंग दीज टाइप्स ऑफ फेस्टिवल. लाइक स्वीडन, अगर आप जानते होंगे, स्वीडन बहुत अच्छे से ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है. नॉट इनफ टाइम. देखिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. टाइम इज अ डेफिनेट फैक्टर, बट ऑर्गेनाइजिंग द थिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Who said why you just invest 2 hours, 4 hours, 5 hours? Only one day tournament, one day festival for 90 minutes is enough. आप सिर्फ 90 minutes के लिए ऑर्गेनाइज कीजिए, not more than that. 90 minutes के लिए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कीजिए और then you just try to involve each and everyone. ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि वहां पर वैसे ही बहुत सारे स्टॉल्स एंड एवरीथिंग जस्ट कम. Would that become a great festival? Next point is not enough staff. तो ये एक important factor होता है. सबको एक यहाँ पर एक problem आती है. They are facing the main thing that is we called resources, and this is we is called a human resource, and everybody is facing while organizing these type of tournaments, leagues, and festivals. We are lacking in this part also, and that is we are called a human resource management. So staffing is the main common problem. So we should take a cooperation and coordination of each and everyone. हमें सबको cooperate करना चाहिए, cooperation लेना चाहिए सबका, और उसके साथ मिलके we can organize the thing. और ये success तभी होगा when it is having a smooth administration and a smooth management. So how we just solve the problem, that is the most important. So again, a special acknowledgement for IHF, International Handball Federation. And this is sources are just taken from IHF only. So again, this is our philosophy of IHF and our also fun, passion, and health. Thank you.